سنیے ذرا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتاتے ہیں مختصر. وَإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ. لوگوں جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. رب العالمین نے بات کو شروع کرتے ہوئے قارون کی قوم کا تذکرہ پہلے کر دیا، یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے لوگوں جب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو فرعون کی بیوی آسیہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور ایمان نہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی اور قریبی رشتہ دار قارون بھی برباد ہو جاتا ہے. رشتوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ کامیابی کا مدار نہیں، کامیابی کا مدار تو ایمان اور اعمال ہوا کرتا ہے. اللہ اسی قرآن میں مثال دیتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. ایمان والوں کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی کی. تخت پر بیٹھ کر فرعون کہہ رہا ہے مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، میں اپنے علاوہ کوئی الہ نہیں جانتا. لیکن فرعون کی گھر والی کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ. تو فرعون کی گھر والی کامیاب ہوئی. رشتے میں فرعون کی بیوی تھی لیکن کامیاب ہو گئے. ادھر ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون فرعون کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اور بڑا مال اللہ نے اس کو عطا فرمایا. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اتنے خزانے یہ پوری جماعت لگتی تھی خزانوں کو اٹھانے کے لیے، یا جیسا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ پوری جماعت لگتی تھی اٹھانے کے لیے. اتنا مالدار تھا کہ پیسے کا حساب نہیں، مال کا اس کو پتہ کوئی نہیں. جب اس کو کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے نام پر مال دے. غریبوں اور مسکینوں کا خیال کر تو بھی اللہ کے نام پر ادا کر، مال کی زکوٰۃ دیا کر. جواب کے اندر کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. مت کہو کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سارا تو میں نے اپنے علم اور اپنے فن سے کمایا ہے. تجھے اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ مجھے اللہ نے دیا تو میں نے محنت کی ہے نا، میں نے کمایا ہے نا، تمہیں کیوں دوں؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا میرے پاس جتنا مال بھی ہے یہ میرے فن، یہ میری مہارت، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے. میں نے پڑھا ہے، میں جناب بڑا کمائی کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. فخر نہ کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر. مال آج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا. یہ مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس مال کے ساتھ بندہ تکبر کرے. پیسہ اس لیے نہیں دیا پیسہ آ جائے بندہ دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھے. فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین. فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس مال کے ذریعے جنت کا سودا کر لے، اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر تیار کر لے، اس مال کے ذریعے اللہ کو راضی کر لے. لیکن اس نے کہا نہیں، موسیٰ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. فرعون نے کہا تھا موسیٰ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. قارون نے کہا موسیٰ مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کے نشے میں دھت قارون. آؤ پھر تمہیں اس کا انجام بتاؤں. ایک دن ایسے ہوا وخرج علی قومہ فی زینتہ.
बड़ी ठाठ के साथ, बड़ी जीनत के साथ, बड़ी उम्दा सवारी पर सवार हुआ, बेहतरीन जोड़ा से वेतन कर लिया, खुद्दाम नौकर चाकर आगे पीछे लगा लिए, बड़ी ठाठ बाट के साथ निकला। हटो बचो की सदा हो रही थी, हट जाओ रास्ता खाली करो, कारून की सवारी आ रही है। शायर कहता है गुरूर था नमूद थी, हटो बचो की थी सदा, गुरूर था नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। आज क्या पूछते हो लहद का भी पता नहीं, नामो निशान मिट गया। हमने ऐसे लाखों देखे जिनका मुअत्तर बदन था, मुज़य्यन चलन था, जब कब्रें उखेड़ी न जुज़्वे बदन था, न तारे कफन था। नामो निशान मिटा के मौत ने रख लिया। बड़े अकड़ और बड़े गुरूर के साथ जा रहा है, मैं बड़ा मालदार हूँ, मूसा के पास क्या है। अल्लाह, कल जब हम घर से निकले रास्ते बेआबान थे, एक तरफ फूल और कांटे, एक तरफ कब्रिस्तान थे। कब्रिस्तान से जो हम गुजरे वहाँ मुर्दों के इनाम थे। राह संभल कर चल गाफिल, कल हम भी जवान थे। फखरज अला कौमिही फी ज़ीनती, बड़ी जीनत के साथ निकला, बड़ी ठाठ के साथ निकला। हालांकि अल्लाह में कुरान में समझाते हैं ला तमशे फिल अर्ज़ मरहा, ऐ बंदे जमीन पर अकड़ अकड़ करना चला कर। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, तेरी ठोकरें मारने से न जमीन फट सकती है, न तू पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकता है, लिहाजा अपनी औकात में रहा कर। लेकिन वो आपे से बाहर था, कारून पैसे का नशा था, माल की तरंग थी, बड़े जोश के अंदर जा रहा है। कालल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया, अब लोगों ने देखा यार काश हमारे पास भी इस किस्म का माल होता। या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश हमें भी इतना पैसा मिल जाता जितना कारून के पास है। इन्नहू लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बड़े पैसे वाला है जनाब, बड़े हिस्से वाला है। लोग देखकर हसरत कर रहे थे। कालल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जो साहिब इल्म थे, जिनको अल्लाह की मार्फत का इल्म था, उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा। अरे क्या हुआ, कारून के पास दुनिया का माल आ गया तो क्या हुआ, ये तो चंद दिनों की ठाठ है, अल्लाह का अजर तो हमेशा रहने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चौबारे पर तशरीफ फरमा थे। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर गए, इजाजत तलब की, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में चले गए। देखा बांग की पटी हुई चारपाई पर दो जहां का सरदार आराम फरमा रहा है। बाण के निशान पीठ पर पड़ गए, खूंटी के साथ मुट्ठी भर जौ लटक रहे हैं। ये कुल कायनात है, सारी कायनात के इमाम की आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो आंखें भर आई, आंखों से आंसू आने लगे। आपने पूछा उमर रोते क्यों हो? कहा या रसूल अल्लाह रोऊंगा तो क्या करूं, कैसर और किसरा के बादशाह दुनिया की लज्जतें ले रहे हैं, दुनिया की अयाशियां कर रहे हैं और आपकी हालत ये है, सोने के लिए बिस्तरा कोई नहीं, खाने के लिए रोटी कोई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उमर कहते मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से फरमाने लगे, ऐ उमर इस बात पर तो खुश क्यों नहीं है, वो दुनिया की लज्जतें ले रहे हैं, अल्लाह में आखिरत में बहुत कुछ अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वहाँ भी ऐसे हुआ, कालल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा। जो समझदार अल्लाह की मार्फत का इल्म रखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा अरे कारून की सवारी को देखकर क्यों हसरत करते हो, कारून के माल पैसे को देखकर क्यों अफसोस कर रहे हो। अल्लाह ताला ने जो अपने खास
50 बंदों के लिए अजर रखा है, उस पर यकीन रखो। ये तो चंद दिनों की ठाट है, अभी खत्म हो जाने वाली है। अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या हुआ, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, हमने कारून को, उसके घर को, उसके सारे खजानों को जमीन के अंदर धंसा दिया। बाद रवायात में आता है, कुरान में तो ये नहीं है, कि कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की कोशिश की, तोहमत लगाने का प्रोग्राम बनाया और एक फाहिशा औरत को पैसे देकर राजी किया, कल तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा देना, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछना बदकारी करना कैसा काम है, यकीनन वो कहेंगे बड़ा गलत काम है, माज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह, फिर तू कह देना आपने क्यों मेरे साथ की है। जब ये कहेगी मूसा अलैहिस्सलाम बदनाम हो जाएंगे, जो बंदा बदनाम हो जाए फिर उसकी बात कोई सुनता नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए उसने प्रोग्राम बनाया, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तो हिफाजत फरमाई, उस औरत की जबान को रोक दिया, वो तो बोल न सकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बता ना अल्लाह की बंदी क्या कहना चाहती है, उसने सच सच सारा वाकया बता दिया। उसने कहा इस तरह मुझे कारून ने पैसे दिए थे कि मूसा पर इल्जाम लगा, लेकिन जब मेरी जबान अल्लाह ने रोक ली है अब तो मैं डर के सच बता रही हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इतना बेईमान है कि मैं तेरा सच्चा नबी अब मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। फरमाया मूसा देख इसको सजा क्या मिलती है, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ा, वो ये न समझे कि मूसा मुझे अजाब दिलवाकर मेरे खजानों पे कब्जा करना चाहता है। अल्लाह ने उसके खजाने, उसका घर भी उसके साथ ही जमीन बोस कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं मा कान लहू मिन फिअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, जिस फौज पर उसको नाज था, जिस माल पैसे का गुरूर था, अब ना माल काम आया ना उसका लश्कर उसको काम आया। अल्लाह के अजाब से कोई छुड़ाने वाला नहीं था। वासबहल्लज़ीना तमन्नौनहु बिल अम्से, जो कल लोग कह रहे थे काश हमारे पास भी ऐसा माल होता, अब वो कहने लगे वही कान्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, शुक्र है हमारे पास नहीं था, जालिम का अंजाम बड़ा खतरनाक है। अल्लाह ईमान दे, अल्लाह ईमान के साथ खात्मा फरमाए, इसके बगैर कोई कामयाबी नहीं। अल्लाह ताला ने सारे वाक़े में खुलासा ही कहा लोगों माल पैसे की धुन में कहीं रब को न भुला देना, रब को न भुला देना। माल पैसे की धुन में जिसने रब को भुलाया उसका अंजाम बड़ा हौलनाक है। एक दिन आने वाला है जब तेरे माल इधर ही रह जाएगा। उजड़ गया वो बाग, उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर गया जब दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दुनिया से आज तक कोई पैसे लेकर नहीं गया। दिला गाफिल